A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already completed your syllabus, and now we are going to the revise all the important chapters which will be asked in the your upcoming examination, that is in unit test 2. And you know very well the first very important chapter which will be asked in your examination, that is an error and their rectification. And thereafter we are talking about the theoretical chapter, the capital and revenue items. So in this video, in this class, we are talking about uh, the second and very important topic, that is capital and revenue expenditure. In the last video, we discussed the capital and revenue receipts. You know very well the capital and revenue items can be classified into the two categories. That is, number one is a expenditure and number two is a receipts. On the basis of the receipts, capital and revenue items can be classified into the two categories, that is capital receipts and revenue receipts. And same as it is when we are talking about the uh, classification of capital revenue items on the basis of the capital on the basis of the expenditure. So it is also classified into the two categories, that is in capital expenditure and revenue expenditure, जिसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस भी किया है. सो आज के इस वीडियो में फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपेंडिचर. And expenditure can be classified into the two categories, that is capital expenditure and revenue expenditure. And thereafter we establish a difference between the capital expenditure and revenue expenditure. So let's start the today's video without creating any delay. So let's we move to the today's topic, that is on capital and revenue expenditure. So all the best. Okay, so what is expenditure? Expenditure, whenever payment are made for a purpose, are made for a purpose for a other than for a purpose other than the settlement of an existing liability. The spelling is existing liability. It is called expenditure. It is called expenditure. Okay, so what is the meaning of expenditure? Basically, जब हम कोई पेमेंट करते हैं, are made for a purpose other than the settlement of an existing liability. यानी जब हम कोई पेमेंट करते हैं किस सेटलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के अलावा, यानी हम उस पेमेंट से किसी लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं करते. ओके, सो व्हेन पेमेंट आर मेड फॉर अ पर्पस अदर देन द सेटलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी को पे करने की बजाय हम और कोई काम के लिए पेमेंट करें, तो दिस विल बी नोन एज द एक्सपेंडिचर. ओके, as well as we can see that they would give benefit to the business. They would benefit to the business. और या तो ये चीजें हमें क्या करें इस पेमेंट से, क्योंकि ये पेमेंट की बात है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाएगा, हम एक्सपेंड करेंगे.
So the first point which are related to the expenditure, by which you can easily understand what is expenditure. So expenditure means whenever payment are made for a purpose other than the settlement of existing liability को पे करने के अलावा जो कोई भी हम पेमेंट करते हैं, it will be known as the expenditure. In other words, we can say that the expenditure which would benefit to the business, जो business को कहीं ना कहीं benefit पहुंचाता है. So this will be known as expenditure. Expenditure can be classified. It can be classified into कितनी कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं? Into 3 categories. Okay, it can be categorized into 3 categories. The first category is capital expenditure. The second will be known as the revenue expenditure, and third category will be a deferred revenue expenditure. So one by one we discussed what is capital expenditure and what is revenue expenditure and what is deferred revenue expenditure. So the first one, what is capital expenditure? Please note down in your copy. The capital expenditure are those expense incurred in acquiring. These expenditures are incurred in acquiring or increasing the value of fixed assets. The value of fixed assets. It will be known as the capital expenditure. So what is capital expenditure? Capital expenditure are the expenditure which are incurred in acquiring, यानी जिससे हम यहाँ किसी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, या फिर उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, या तो हम उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. सो दिस विल बी एक्सपेंडिचर एज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. इफ यह एक और पॉइंट ऑफ व्यू में हम बात कर सकते हैं कि such kind of expenditure benefits the benefits of which यानी इस एक्सपेंडिचर से होने वाला benefits of which extends to more than one accounting year. More than one accounting year. यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम किसी फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम इनकर्ट करते हैं. दूसरी बात यह है कि इस एक्सपेंडिचर से मिलने वाला बेनिफिट, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं, सपोज अगर मैंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कोई अमाउंट पे किया, तो इस एक्सपेंडिचर से होने वाला बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट करता है. जैसे अगर हम आपसे एग्जांपल्स की बात करें, if we are talking about this some example which are related to the capital expenditure, so the example are related to the capital expenditure like purchase of fixed assets. अगर हम फिक्स एसेट्स खरीद लें तो उससे हमारे पास फिक्स एसेट आ जाएगी. लाइक लैंड खरीद लें, मोटर कार खरीद लें, लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर लें. सो दिस विल बी नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. One more example, purchase of material for construction of building. आपको बिल्डिंग बनवानी है, घर की या ऑफिस की, ठीक है. तो अगर आपने बिल्डिंग खरीदने के लिए, बिल्डिंग बनवाने के लिए आपने मटेरियल खरीदा, तो इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बिकॉज इससे क्या होगा, आप एक एसेट एक्वायर करो, क्योंकि बिल्डिंग हवा में तो पैदा नहीं होगी. ऐसा तो नहीं आप रेडीमेड दुकान पे जाओगे, बिल्डिंग खरीद के लेकर आ जाओगे, नहीं.
बिल्डिंग को बनाना पड़ता है, या तो आप रेडीमेड हाउस खरीदते हो, उसके लिए आपको मटेरियल नहीं चाहिए, सो दिस विल बी नोन एज द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो आपको लिए उसके लिए सीमेंट चाहिए, उसके लिए लाइन चाहिए, उसके लिए आपको ब्रिक्स चाहिए, उसके लिए आपको मटेरियल्स चाहिए, सो दिस विल बी नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। Okay, so what is capital expenditure? I hope it is clear for you. As well as if we are repair of assets, if we are paid the repair amount of assets purchased second hand, अगर मान लीजिए हमने कोई सेकेंड हैंड कोई भी एसेट्स खरीदा, तो उस एसेट्स का अगर हम रिपेयर कराएंगे, सो इट विल आल्सो कैटेगराइज एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक अगर हम किसी कंपनी की गुडविल खरीद लें, परचेज ऑफ गुडविल, सो इट इज आल्सो नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज अगर हम एक और एग्जांपल लें, सपोज अगर हम किसी एसेट्स को खरीद रहे हैं, सो and when we acquire any assets and if we paid the installation charge, if we paid the transportation cost on such assets, so it will also known as the capital expenditure. So I hope it is clear for you what is capital expenditure. Now we will move to the revenue expenditure. Please note down in copy properly. Okay, the second type of the expenditure is revenue expenditure. So what is revenue expenditure? Please note down. Okay, so what is revenue expenditure? Revenue expenditure is an expenditure which are incurred for day to day conduct of द बिजनेस, यानी अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, ये भी कह सकते हो एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया, सो इट विल बी नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। What is revenue expenditure? Revenue expenditure are those expenditure which are incurred for day-to-day conduct of the business activity. Okay, I hope it is clear for you. As well as we can see that with the help of revenue expenditure, यानी revenue expenditure के help से benefit हमें एक ही काउंटिंग ईयर का होता है। इसका मतलब नहीं कि अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो उसका बेनिफिट आपको कई साल के लिए होगा। जैसे अगर आप यहाँ देख लो कि आप लैंड खरीदोगे, मोटर कार खरीदोगे, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदोगे, बनवाओगे, कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीद के उसका रिपेयर करा दोगे, तो उसका आपको ऐसा नहीं कि सालों साल आप उसका यहाँ पे तो आपको सालों साल इसका रिटर्न मिलेगा, कई साल तक आपकी एसेट्स चलेगी। लेकिन अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो तो उसका बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए ही मिलता है, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए ही मिलता है। इट मींस बेनिफिट्स ऑफ such expenditure extends up to one accounting year, यानी जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ करंट ईयर में रिसीव होता है। ऐसा नहीं कि आप सालों साल उससे मिलने वाले बेनिफिट्स को उठा पाओगे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, क्योंकि एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस है, सो एग्जांपल में वी कैन सी दैट सपोज अगर हमने अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मैं एक बहुत ही कॉमनली एग्जांपल देता हूँ, सपोज यू आर ए टी सेलर। अगर आप टी बेचते हो तो टी के लिए क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, टी चाहिए, गैस चाहिए, सो इट विल बी नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, चूल्हा चाहिए, सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ऐसा नहीं कि चूल्हा जो आप लोगे जिससे आप चाय बनाओगे तो वो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी, नहीं सर। अगर हम अपने रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी अपने
प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर आप मटेरियल्स खरीदते हो, सो इट विल बी नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, as well as payment related to selling of product. प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर आप कोई भी सेल करने के लिए कोई भी एक्सपेंस करते हो, तो इट विल बी नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे कि आप अपने सेल्समैन अपॉइंट करते हो, सेल्समैन आपको क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाता है या इजिली लोगों तक अवेलेबल कराता है. सो इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एज वेल एज अगर आप अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए अपने आप वर्कर्स रखते हो, लेबर्स रखते हो, तो उनको जो सैलरी एंड वेजेस भी पे किया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, पेमेंट टू वर्कर और लेबर. अगर लेबर को या वर्कर को कोई पेमेंट किया जाता है, so it will also known as the revenue expenditure. So you can see that what is capital expenditure, what is revenue expenditure. Please note down carefully in your copy. इसके अलावा भी बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर आप इन्वेंट्रीज परचेस करते हो, गुड्स परचेस करते हो, गुड्स परचेस करने पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन चार्ज पे करते हो, so it will be revenue expenditure. अगर so you can see that what is capital expenditure and what is revenue expenditure. Okay, so capital expenditure are expenditure which are incurred in acquiring and increasing the value of fixed assets, whereas revenue expenditure which are incurred for day-to-day conduct of the business transaction. With the help of the revenue expenditure, you can see that with the help of the revenue expenditure, we can easily uh, enjoy the benefit of such expenditure for more than 1 year. Whereas if we are talking about the revenue expenditure, so those such expenditure give the benefit to the business for less than 1 year. It means the within a 1 year, that is a up to the accounting year. यानी accounting year जितना बड़ा होगा, ये expenditure आपको उतना ही benefit देगा, उससे ज्यादा का benefits आपको नहीं मिलेगा. ओके, सो आगे बात करने से पहले हम इन दोनों एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं. उसके बाद हम लोग चलेंगे द थर्ड टाइप्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, दैट इज रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो वन बाय वन कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. So our next topic is the difference between capital expenditure and revenue expenditure. So our topic is the difference between capital expenditure and revenue expenditure. इन capital expenditure और revenue expenditure में क्या difference है? So ये differences हम लोग one by one on the basis specific basis के form पे हम लोग क्या करेंगे? Difference create करेंगे. तो first column is a basis, second column which are related to the कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको फुल फॉर्म करके लिखना होगा. मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग भी क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म सीख जाओगे, क्योंकि आप लोग जल्दी अच्छी चीजें नहीं सीखते हो, खराब चीजें पहले सीख लेते हो. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कि सर शॉर्ट में लिख रहे हैं तो मैं भी शॉर्ट में लिखूंगा. सो पहला बेसिस ये है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट. इफेक्ट के बेसिस पे अगर हम लोग देखें, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस. इंक्रीज द अर्निंग कह लो, या फिर प्रोड्यूसिंग
कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अब आप ये मत देखना सर कि इसको आप ज्यादा जगह दिए उसको कम जगह दियो, ठीक है, ऑफ बिजनेस। सो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपको पता है इससे क्या होता है, आपके बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। किस तरह की कैपेसिटी? अर्निंग, प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी या प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। प्रोड्यूस, गुड्स को प्रोड्यूस, जैसे अगर हमारे पास एक मशीनरी है तो एक मशीनरी क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीनरी से लिमिटेड प्रोडक्ट ही बना पाएंगे ना। जब हम एक मशीनरी से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने लगेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, अगर एक से ज्यादा मशीनरी होगी। अगर हम एक मशीनरी यूज कर रहे हैं, एक प्लांट यूज कर रहे हैं, तो हम लिमिटेड प्रोडक्ट को ही सेल कर पाएंगे। एक से ज्यादा मशीनरी अगर हम सेल करेंगे तो क्या होगा, आप ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है आपको पता है, ये आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि विद द हेल्प ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी मेंटेन द earning, maintain the earning and producing capacity of the business। यानी कि अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम लोग की हेल्प से हम लोग जो एसेट्स हैं हमारे पास, जो मशीनरी है, उनकी कैपेसिटी को मेंटेन रखते हैं। आप कहोगे सर ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? सो अगर सपोज आपके घर में कोई मशीनरी है, नया नया मशीन लेकर आए, एक वॉशिंग मशीन थी तो लिमिटेड क्लॉथ्स साफ होते थे, दो मशीनरी आ गई तो ज्यादा होने लगा। एक टाइम पे आप जहां 10 कपड़े धुलते थे वहां दो मशीन आने से अब आप कितने कपड़े धुलोगे, दो। ऐसा नहीं कि आप धोबी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा हूं कि सपोज अगर आपके घर में बहुत बड़ी फैमिली और आपको ही कपड़े धुलने की जिम्मेदारी है, आप ही को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, सबके कपड़े आप ही धुलोगे। सो अगर आपके पास एक वॉशिंग मशीन है तो आप सिर्फ 10 कपड़े धुल पाओगे एक टाइम पे। लेकिन एक से ज्यादा मशीन वॉशिंग मशीन हो जाएगी तो आप कितने कपड़े धुल पाओगे, हाउ मेनी क्लॉथ्स यू हैव फिनिश मीन्स साफ कितना कर पाओगे। सो सर एक टाइम पे हम 20 कर लेंगे। कैसे कह रहे हो सर? एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, आई नो यू डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस इन वॉशिंग द क्लॉथ, ओके, वॉश द क्लॉथ। तो बेसिकली आपको बस इतना समझना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के से आप क्या करते हो, आपकी प्रोड्यूसिंग और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ सर मेंटेन कैसे होती है, ये बताइए। मेंटेन देखो ऐसी होती है, मशीनरी है, उसको रिपेयरिंग चाहिए, उसमें प्रॉपर ऑयलिंग चाहिए, उसकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग होनी चाहिए। जैसे अगर आपके घर पे एसी होगा, आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, तो उसका एक प्रॉपर टाइम पे रिपेयरिंग होती है। जैसे आपकी बाइक की सर्विसिंग होती है, तो अगर आप बाइक की सर्विसिंग कराते हो ना, तो इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाइक खरीद के लेकर आते हो तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन बाइक लाकर उसको चलाते हो 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद, जब आपको लगता है कि उसका मोबिल चेंज करना है, उसकी फंक्शनिंग उतनी अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप उसकी सर्विसिंग कराते हो। तो सर्विसिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने सेकंड हैंड खरीद के तुरंत रिपेयरिंग नहीं करा। देखो सेकंड हैंड एसेट्स को खरीद के तुरंत रिपेयर कराओगे तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो रिपेयर होने के बिना वर्केबल नहीं होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आप किसी एसेट्स को खरीद रहे हो, इमीडिएट खरीद के कोई खर्चा कर रहे हो, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन खरीदने के बाद आफ्टर सम टाइम 6 मंथ 3 मंथ 2 मंथ, आफ्टर 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे, आप क्या कर रहे हो, कोई खर्चा कर रहे हो उसकी, ताकि उसकी कैपेसिटी मेंटेन रहे। सो इट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। और दूसरा बेसिस क्या है सर? पर्पस। द पर्पस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर is to acquire the fixed assets for business। यानी इसका पर्पस होता है कि बिजनेस में फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हो, ताकि हम बिजनेस को ऑपरेट कर सके और बिजनेस। But the purpose of revenue expenditure is not to
एक्वायर द फिक्स एसेट्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मोटिव ये नहीं होता है कि आप फिक्स एसेट्स खरीदो, बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मोटिव ये होता है फॉर फेसिंग या एंकरिंग टू डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इसलिए इनकर्ड करते हो ताकि आप बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी को कंडक्ट कर सको। इसका एक और डिफरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो बहुत इजी था। इसका एक और डिफरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है दैट इज अ नेचर। अगर हम नेचर की बात करें, इसका नेचर कैसा होता है, जैसे आपके घर में गेस्ट के नेचर होते हैं, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो कभी कभी आते हैं, बट सम ऑफ द गेस्ट जो बार बार आपके आते हैं, जो गेस्ट रह नहीं जाते हैं बेसिकली। सो if we are talking about the nature of the capital expenditure and revenue expenditure, so we can say that कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर ऐसा होता है ना जो हमेशा नहीं होता। जैसे अगर आपके घर में एसी परचेज होगी ना, तो 5 साल 10 साल में कोई एक बार होगी। लेकिन अगर आपके बिजनेस में गुड्स खरीदना है, वर्कर को सैलरी देनी, तो बार बार होगी। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो नेचर है ना, वो ऐसे मेहमान की तरह है, ऐसे गेस्ट की तरह है जो कभी कभी आते, जिनको हम कभी कभी इनकर्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप मशीनरी खरीदते हो, लैंड खरीदते हो, प्लांट मशीनरी खरीदते हो, मोटर कार खरीदते हो, तो सच काइंड ऑफ द एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर। सो ये किस नेचर का होता है? इट इज अ नॉन रेकरिंग नेचर, क्योंकि आप इसको कभी कभी एक्सपेंस करते हो। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है? इट इज अ नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार नहीं होता। और आप बिजनेस में कह लो चाहे घर में कह लो, आप इजिली क्लासिफाई कर लोगे कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है? नॉन रेकरिंग होता है, जो बार बार नहीं होता, बिकॉज वी समटाइम्स incur the capital expenditure. But when we are talking about the revenue expenditure, so revenue expenditure किस नेचर का होता है? It is a nature of recurring. It is a recurring in nature. यानी ये एक्सपेंडिचर डे टू डे, क्योंकि नाम ही है डे टू डे, प्रतिदिन होंगे। एक दिन में कई बार ये एक्सपेंसेस होंगे, कई बार हम क्या करेंगे? वेजेस देंगे, कई बार हम चाय बनाएंगे, उसके लिए चाय चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चायपत्ती चाहिए। लेकिन आप अपनी दुकान के लिए, प्योर टी सेलर, तो कभी आप गैस खरीदोगे ना? गैस का मतलब चूल्हे से है, जिसपे आप टी को क्या करोगे? बनाओगे। सो आप मशीनरी कभी कभी खरीदते हो, लेकिन मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, मशीनरी जिस पर्पस के लिए खरीदा है आपने, उस पर्पस को कंडक्ट आप बार बार करोगे, बार बार गुड्स प्रोड्यूस करोगे, तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, उस पे जो वर्कर काम कर रहा है उसको सैलरी चाहिए, उसको वेजेस चाहिए। So this is a nature. So the last basis, if you are talking about the last basis, that is on the basis of period. So period के basis पे अगर हम बात करें, so you know very well, the effect of capital expenditure is more than one accounting year. More than one accounting year. It means capital expenditure का जो इफेक्ट होता है, या पीरियड कह लो, वो एक साल के ज्यादा के लिए होता है, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो द बेनिफिट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर extends to one accounting year. Okay, so in today's video, finally we start a new chapter, that is a capital and revenue items. In this chapter we can see that there are basically two items, two basis for the classification of capital revenue, that is expenditure and receipts. On the basis of the expenditure, we classify the capital revenue items in the three parts, that is the capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. If we are talking about the receipts, so on the basis of receipts we can also classify the item into the two parts, that is the capital receipts and revenue receipts. और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस
What is capital expenditure? What are the example of capital expenditure? What are the meaning of revenue expenditure? And what are the example of revenue expenditure? As well as we already discussed what are the difference between capital expenditure and revenue expenditure. मैंने सिर्फ 4 डिफरेंस बताया है, बुक ओपन करोगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस दिखेंगे. तो ये मेन डिफरेंसेस हैं, आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. सो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आई होप टुडे वी डिस्कस्ड, today we cleared all the topics very easily. Okay, thank you, thanks a lot, and take care. Bye bye.